strong and the weak electrolyte. We have discussed about it. Now we have talked about for the weak, what is the reason for increasing on dilution, the molar conductance increasing on dilution. What is the reason for it? Okay, so we have discussed about the also dilution law, and we also talk about degree of ionization. If the degree of ionization is more the on dilution, so therefore as concentration decrease, their ionization is taken place more, so therefore more ions are formed for the weak electrolyte, so that's why the conductivity is increasing in terms of weak electrolyte. Okay, so now in that we have discussed about degree of ionization or degree of dissociation. So let us talk about that degree of the ionization or can say dissociation. So we talk about the alpha. So when we talk about alpha, alpha can be vary from 0 to 1. So it can be vary from the degree of ionizations, that is alpha, can vary from 0 to 1. Okay, it can be maximum up to 1 when it has been diluted at the maximum. Okay, so that's why I already have told you that the degree of ionization is always been less than 1. So that is a case where it can be maximum, it can be 1. Okay, so degree of ionization or degree of dissociation is also considered to be one of the factor for the weak electrolyte, because on dilution it is increasing. So in terms of the conductivity, the arenas also derive the degree of ionization is equals to the molar conductance of that molecule upon molar conductance of that particular molecule at infinite dilution. So this is the relation which they have talked about. So degree of ionization can be determined from the molar conductance. Now where we can talk about the alpha m is your the molar conductance, and this is nothing but the limiting molar conductance. Okay, so this is also known as molar conductance at infinite dilution. Conductance at infinite dilution. Okay, so if the values are given, then you can easily calculate degree of ionization also. You can easily do that. Okay, so let me talk about in regarding this, let us discuss with one question for today. Now if you have been given the value, then how do you calculate it, that you can use? So one is the specific conductance of 0.01 molar solution of acetic acid was 0.016 Siemens per meter. Okay, so calculate the degree of
degree of ionization or a dissociation of the acid if the molar conductance of infinite dilution for acetic acid is equals to 400 into 10 to the power minus 4 Siemen Siemen meter square per mole. Okay. So now, in this particular example, you can see that specific conductance is given and infinite dilution in limiting molar conductance is given, or you can say molar conductance at infinite dilution is given. Okay. So according to the concept which we have discussed, उसमें क्या है, हमने जो डिस्कशन किया है उसमें क्या चाहिए, हमारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है जो मैंने अभी गिवन है. एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है, डायरेक्ट वैल्यूज भी देता है. आपकी असाइनमेंट जो पुराने क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां डायरेक्टली दिया हुआ है. ठीक है, तो वो आसान है इसलिए मैंने वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, तो ये थोड़ा अलग टाइप का है. अब देखो हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं इसमें हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है. दिस वैल्यू इज गिवन 400. ठीक है, m square per mole. Okay, but here we don't know this value, so we need this value. तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट पता है कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन. मोलर कॉन्सेंट्रेशन एग्जाम में कभी सी भी लिखता है, सीएम भी लिखता है. मेरा जो नोटेशन है सीएम है, कल को सी भी लिखता है तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कल को कंसंट्रेशन जो है मोलर कंसंट्रेशन में सीएम लिख रहा हूँ, एग्जाम में कल लिख सकता है सी भी. ठीक है, तो कोई इशू नहीं है. नाउ इसमें हमारे पास सीएम क्या है, सीएम इज गिवन, सीएम इज नथिंग बट 0.01 मोलर है. ठीक है, तो ये तो गिवन है ही. के भी गिवन है क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है. स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारा कितना है 0.16 सीमन मीटर स्क्वायर है. ठीक है, सॉरी पर मीटर है ना, हाँ पर मीटर है, राइट. so these are given, so I can easily calculate this value. so m, the molar conductance is 0.016 Siemen per meter upon the 0.01 mole per dm cube, है ना, per dm cube, right. so therefore you can easily calculate इसमें कितना मीटर के इसमें कन्वर्जन होगा, मीटर में होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ये वैल्यू आएगा 1.6 सीमन पर मीटर पर मोल. ये तो आगे इसका माउ डीएम को हम उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/10 टू द पावर, ठीक है, मीटर टू द पावर ऑफ 3. पर डीएम के ऊपर आएंगे तो मीटर में कन्वर्ट होगा, है ना, मीटर में कन्वर्ट तो इतना आएंगे. सो दैट विल बी 1.6 10 टू द पावर -3. ठीक है, सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल. ठीक है, मीटर स्क्वायर, हाँ एक मीटर क्यूब है ना, तो ये एक मीटर 1 से कैंसिल हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर होंगे. ठीक है, इज इट ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. यस, कन्वर्जन मैंने कल बता भी दिया है आपको, कोई इशू नहीं है. अब नाउ हमारा चाहिए क्या, लिम्डा, आप सॉरी अल्फा इज इक्वल्स टू lambda m and
राइट. सो दिस वैल्यूज वी हैव. सो हमारा ये वैल्यूज हैं 1.6 10 to the power 3 minus 3 सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल अपॉन जो गिवन वैल्यू है वो है 400 इंटू 10 to the power minus 4 सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल. ठीक है, तो ये सारे यूनिट तो कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस इज फाउंड टू बी आ रहा है कितना 0.04. 0.04 इसका मतलब कितना होगा 4%. सो परसेंटेज वाइज अल्फा विल बी 4%. ठीक है, तो 4% आयनाइजेशन है. राइट. सो दिस इज नथिंग बट 4%. अल्फा की वैल्यूज है 0.04. अल्फा की वैल्यूज है 0.04. ये वैल्यूज एग्जाम में ये मिलेगा, मगर परसेंटेज में पूछता है तो ये है 4% ऑफ आयनाइजेशन. Okay, so they can say 4% of ionization or 4% of dissociation, right? So this can be used for your calculation. Now you are getting the point. Is there any confusion? Anyone? Yeah, good. Arunima, हाँ, आपने सही लिखा है. Is there any? Yes. Yeah. Okay. So now so let us go ahead. I hope you can understand this point. Anyone who have any problems? Okay, okay, good. So let me go ahead with this. Now, what we have discussed about is for weak electrolyte. अभी जितने भी हमने अभी डिस्कशन किया है वो है weak electrolyte. Now, strong electrolyte की केस में क्या है? So in the case of strong electrolyte, in the case of now second point I'll talk about is in the case of strong electrolyte, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में क्या है? नाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली आयोनाइज. ठीक है, इट कंप्लीटली आयोनाइज. नाउ व्हाई एंड हाउ द ऑन डाइल्यूशन it molar conductance increase. ठीक है, so in the case of the strong electrolyte, the electrolyte it is completely ionized. ठीक है, it is completely ionized. Okay, or you can say dissociated. Now जब नया आयन्स बनने का है नहीं है, जब डाइल्यूशन आप करेंगे तो इसकी केस में भी ऐसा कोई इंक्रीज क्यों हो रहा है? ठीक है, व्हाई द मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज? द क्वेश्चन इज व्हाई द मोलर कंडक्टेंस is increase on dilution. ठीक है, on dilution. Now the reason for is this is now due to the ion-ion interaction. ठीक है, ion-ion interaction. Now ion-ion interaction को how do we explain it? Okay, ion-ion interaction को कैसे हम explain करते हैं for the strong electrolyte. So therefore this cannot be explained by the Oswald dilutions law or any other method. So these can be explained by using the concept of Debye-Huckel theory. ठीक है, Debye-Huckel
Huckel-Onsager theory. ठीक है, the Huckel-Onsager theory. They have developed different kind of the concept. But before that, let me just talk about the just giving you some idea about Debye-Huckel theories. What Debye-Huckel theory talks about. मेरे ख्याल से सभी को Debye-Huckel theory पढ़ा है. Number of ion increases. No, for the strong electrolyte it cannot be. Number of ion increase होगा नहीं क्योंकि already one time में increase हो चुका है. तो आपका जो है नंबर ऑफ आयन इंक्रीज नहीं होगा ऑन डाइल्यूशन में. ठीक है, तभी तो मैं इसकी डिफरेंस बता रहा हूँ. नाउ Debye-Huckel थ्योरी, Debye-Huckel-Onsager थ्योरी की पहले आपने सुना होगा Debye-Huckel theory of ionic atmosphere. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Can somebody give me some idea? Yes? Yes or no? If you study, yes. If you, okay, no. Or some of them have studied. Okay, no problem. Let me just briefly give you an idea. Debye-Huckel थ्योरी को ही एक्सटेंशन किया है ऑनसागर ने. सो उसी को लास्ट एडिशन पॉइंट है. बट Debye-Huckel कॉन्सेप्ट क्या है मैं शॉर्टली समझाता हूँ. Debye-Huckel थ्योरी ऑफ एटमॉस्फेरिक आयोनिक एटमॉस्फेयर का मतलब ये होता है कि कोई भी कैटायंस और एनायंस, ठीक है, जब सेंटर में रहता है तो इसकी सराउंडिंग में यूनिफॉर्मली अपोजिट चार्ज का आयंस जो हैं वो सराउंड करता है सिस्टमेटिकली एंड यूनिफॉर्मली. मान लो सेंट्रल आयन, इसको हम कहते हैं सेंट्रल आयन, और इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक आयोनिक एटमॉस्फेयर. ठीक है, आयनिक एटमॉस्फेयर मतलब सराउंड जो है वो दोनों अपोजिट चार्ज का होगा. जैसे सेंट्रल आयन पॉजिटिव है तो आपका एटमॉस्फेयर आयन जो है वो नेगेटिव होगा. ठीक है, सिमिलरली जब आप नेगेटिव आयन सेंटर में लेंगे तो पॉजिटिव आयन्स सराउंड करेंगे. ठीक है, ये बेसिक है. इसी बेसिक को थोड़ा समझना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये बोला यूनिफॉर्मली. इसको अनयूनिफॉर्म मत करना, मेरे लिखने में थोड़ा सा हो सकता है, बट इट शुड बी सिस्टमेटिकली यूनिफॉर्म. ये हो गया भी नाउ सेंट्रल आयन. नाउ सेंट्रल आयन इस केस में नेगेटिव है, और ये हो गया आपकी आयोनिक एटमॉस्फेयर. ये है पॉजिटिव हो गया. मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ईच आयन्स आर सराउंडेड बाय opposite charge. ठीक है, each ions are surrounded by opposite charge. This is the basic idea about Debye-Huckel concept. ठीक है, now Debye-Huckel जो concept है उसको मैं एक लाइन में आपको बता देता हूं कि ये क्या कहता है. ये कहता है कि each ion in the solution is surrounded by an atmosphere of other ion whose net charge is on average opposite to that of the central ion. ठीक है, ये Debye-Huckel का स्टेटमेंट है. Debye-Huckel थ्योरी के स्टेटमेंट आपको बता देता हूं. ऐसा लिखते हैं, कल को एग्जाम में ये भी आ सकता है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है. ईच आयन मतलब कोई भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इन सॉल्यूशन is surrounded by an atmosphere of other ion, मतलब उसकी ऑपोजिट में other ion whose net charge is on average
on the average opposite to that of the central ion. ठीक है, मतलब ये बेसिक स्टेटमेंट है। ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर है ये सेंट्रल से ऑपोजिट होगा, ठीक है, और नेट चार्ज उसकी बैलेंसिंग में रहेंगे। बैलेंसिंग इसलिए क्योंकि ये कभी पॉजिटिव नेगेटिव बीच में जो है वो इतना अट्रैक्शन नहीं होता है, वो सिस्टमेटिकली यूनिफॉर्मली ये जो है इस एटमॉस्फेयर को रहता है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ ये जो आयोनिक एटमॉस्फेयर है ये इसकी बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये है कि ये सिस्टमेटिकली एंड सिमेट्रिकल नेचर होता है विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होता है और इसकी जो एटमॉस्फेयर है वो है सिस्टमेटिक एंड सिमेट्रिक होता है, ठीक है। सो द एटमॉस्फेयर इज systematic systematic and symmetrical or spherical, okay, ठीक है, spherical in nature, ठीक है, without any external potential or fill, ठीक है। मान लो आपने कोई एडिशनल फोर्स नहीं डाला है या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं यूज किया है, पॉजिटिव चार्ज यूज नहीं किया है, तब ये सिमेट्रिकल रहेंगे, ठीक है। ये डिवाहेकल थ्योरी की कॉन्सेप्ट है, डिवाहेकल थ्योरी ऑफ आयोनिक एटमॉस्फेयर की कॉन्सेप्ट है। नाउ डिवाहेकल ऑनसागर थ्योरी ने क्या कहा है और उसकी एक्सप्लेनेशन हमारी मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन में क्या रिलेवेंट है, उसके बारे में हमारी जो कॉन्सेप्ट है उसमें जानकारी ले सकता है। सो नाउ हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डिवाहेकल ऑनसागर थ्योरी जो है उसने दो इफेक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। सो डिवाहेकल हुकल ऑनसागर थ्योरी introduce two effects, ठीक है। नंबर वन उसको कहते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट, नंबर टू इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट, फोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ठीक है, चलो एक मिनट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट्स, ओके। ये दो इफेक्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। नाउ इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्या रिलेवेंट है, लेट अस टॉक अबाउट दिस टू फैक्टर्स। नाउ ये जो इफेक्ट्स क्या बताता है, बोथ दिस इफेक्ट, दोनों इफेक्ट जो है, बोथ ऑफ दिस इफेक्ट्स explain why the molar conductance of strong electrolyte ठीक है increases
ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, ये बात है, तो इसलिए हमको ये जानकारी लेना था इसका। ठीक है, तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज टू इफेक्ट्स। पहले एक इफेक्ट समझते हैं, उसके बाद दूसरा इफेक्ट्स भी हम आपको समझा देंगे। नाउ इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट जो है वो क्या कहता है? ठीक है, वो ये कहता है कि आपका, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं। आप लोग इसको ड्रॉ कर लो। सपोज दिस इज ए पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे आपका सेंट्रल आयन है, और यहाँ नेगेटिव आयन्स हैं सराउंडिंग, जो डिवाइकल थ्योरी ने जो कहा है उसी तरह। ठीक है, ये ए है। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। नाउ let me show you little different. Okay, now can you hear me now? Anyone? Yes, if you say yes, if you can hear me, kindly say yes, because my connectivity, okay, now you can hear me now. Okay, thank you. So what I want to explain you here is this particular concept. Now in these particular two concepts, this is what we are talking about. The first is nothing but asymmetric effect I am talking about. ठीक है, ये जो मैंने लिखा है वो asymmetric concept को मैं define करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि दोनों में क्या कॉन्सेप्ट अलग अलग है। asymmetric effect की बात मैं कर रहा हूँ। नाउ पहला ए जो है, इसमें क्या है, ए जो है इसमें फील्ड ऑफ है, मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। आप देखे हैं यहाँ पे ए में पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, उसकी सराउंडिंग बड़ा सिमेट्रिक और स्पिरिकल नेचर की तरह है इसमें, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन नहीं किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है बट मैंने कोई अप्लाई नहीं किया है, तो फील्ड जो है ऑफ है। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिकल, एक यूनिफॉर्म आपकी जो आयोनिक एटमॉस्फेयर भी है और सेंट्रल आयन भी है। ठीक है, नाउ सेकेंड जो बी है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है और नाउ फील्ड इज ऑन, फील्ड इज ऑन, मतलब मान आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव के पास आ रहा है और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है और अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होगा, तो पॉजिटिव की एटमॉस्फेयर जो है वो नेगेटिव की एटमॉस्फेयर जो है पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, और पॉजिटिव सेंट्रल आयन जो है वो अपोजिट में नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, इज इट ओके? Now these kind of distortion of spherical ionic atmosphere is called asymmetric effect. ठीक है, तो सबसे पहले मेरी asymmetric effect के कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या है वो? ये है distortion of
the ionic atmosphere is called asymmetric effect. asymmetric effect इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो बी में जो हो रहा है वो आपका एसिमेट्रिक इफेक्ट हो रहा है। क्लियर? बी में जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, एसिमेट्रिक इफेक्ट हो रहा है जब फिल अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, इसको कहते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट। नाउ एसिमेट्रिक इफेक्ट जो हो रहा है उससे हमारी आयोनिक मोबिलिटी में क्या फर्क पड़ता है, मोलर कंडक्टेंस में क्या फर्क पड़ता है, उसकी जानकारी आपको लेना है। ठीक है, तो नाउ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू हियर इज जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक environment जो सिस्टम की हैं अराउंड द आयन मतलब सेंट्रल आयन, ठीक है, is called ionic atmosphere। तो मैं आयोनिक एटमॉस्फेयर किसको कह रहा हूं, सराउंडिंग को कह रहा हूं। ये जो सराउंडिंग है, ठीक है, ये इसकी सराउंडिंग ये है, इसकी सराउंडिंग ये है। ठीक है, नाउ व्हेन वी अप्लाई, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो व्हेन द external field is applied, external electric field is applied। ठीक है, जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, एक आयंस, द आयन एंड द ionic atmosphere move in opposite direction। जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू विच the spherical symmetry is destroyed। बोलेंगे या डिस्टर्ब बोलेंगे, ठीक है, destroyed and the central ion cannot move independently, but it moves against the net dragging force of ionic atmosphere। आया समझ में? देखो, ये जो आपका आयोनिक एटमॉस्फेयर जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है और सेंट्रल आयन आपका राइट की तरफ जा रहा है। तो आपकी जो मूवमेंट है एटमॉस्फेयर की मूवमेंट के अगेंस्ट में है। एटमॉस्फेयर जो है वो आपको लेफ्ट की तरफ ले जाना चाहता है, मगर आप राइट की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑन डाइल्यूशन में भी वही है, ऑन डाइल्यूशन
ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इंक्रीज। जब आप डाइल्यूट करेंगे तो आयन आयन के बीच में जो है वो डिस्टेंस बढ़ेगा, राइट। सो आपका ग्रेजुअली आयोनिक एटमॉस्फेयर इज वैनिस, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आयन आयन के बीच की इंटरेक्शन खत्म हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ गया है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ड्रैगिंग फोर्स खत्म हो जाएंगे। तो आयन मूव मोर फ्रीली, ठीक है। सो देयरफॉर द मोलर कंडक्टेंस increases, ठीक है, on dilution. Is it okay? Now can you hear me and can you understand the concept which I am talking about? Dragging force बता दो। हाँ, ठीक है। ड्रैगिंग फोर्स क्या है? ड्रैगिंग फोर्स का मतलब मैंने आपको ऊपर, आपको देखो देखो ये जो ऊपर है ना वो देखना पड़ेगा। ड्रैगिंग फोर्स क्या है? ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जा रहा है लेफ्ट की तरफ, सेंट्रल आयन जा रहा है राइट की तरफ। तो एटमॉस्फेयर जो है वो तो आयन ज्यादा है, आयंस जो है वो सराउंडेड है, ये ऑपोजिट में जा रहा है तो वो आपको पुल करने की कोशिश करेगा, और जो सेंट्रल आयन है वो उसकी ऑपोजिट में जा रहा है, तो इसको कहते हैं ड्रैगिंग फोर्स, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एटमॉस्फेयर के अंदर जो फोर्स है उसको ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं, जो क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इज इट ओके? या सो नाउ, सो जब डाइल्यूशन करेंगे तो आयन आयन इंटरेक्शन कम हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि फोर्स ऑफ द मोलर कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होगा तो आयन आयन इंटरेक्शन की वजह से है। आयन आयन इंटरेक्शन जो है वो कम होगा। आयन आयन इंटरेक्शन मींस पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन होता है इंटरेक्शन, तो क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो होगा नहीं, नेगेटिव नेगेटिव होगा नहीं। तो पॉजिटिव आयन मतलब आपका अपोजिट पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन होता है, उसकी इंटरेक्शन कम कराएंगे ऑन डाइल्यूशन में। तो आयंस फ्रीली मूव करेगा, जब फ्रीली मूव करेगा तो वो जल्दी ओपनली मूव कर सकते हैं। सो इसलिए आपका जो मोलर कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि आयन तो इंक्रीज करेगा नहीं, क्योंकि एक बार में वो तो आयोनाइज हो गया है, ठीक है, कंप्लीट आयोनाइज हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आप डाइल्यूशन करेंगे तो उसकी आयोनाइजेशन तो बढ़ेगा नहीं, बट आयन का नंबर सेम है, बट डाइल्यूशन में क्यों इंक्रीज हो रहा है? डाइल्यूशन में आयन आयन इंटरेक्शंस कम होते हैं, ठीक है। वही कम होने के बाद मैंने लास्ट में लिखा है ऑन डाइल्यूशन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इंक्रीजेस ग्रेजुअली। जब आपके एटमॉस्फेयर और सेंट्रल आयन के बीच की जो अट्रैक्शन है और इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाएंगे, तो जो एटमॉस्फेयर जो अपोजिट में खींच रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो आयन जो है वो फ्रीली मूव करेंगे, जब आयन फ्रीली मूव करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। दिस इज द रीजन फॉर the increasing of molar conductance for the strong electrolyte on dilution। ये explanations जो हैं वो ये आपका asymmetric effect के concept में उसने explain किया है। इस explanation को दिवाहेकल ऑनसागर थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी नेक्स्ट, जो हमारे पास सेकेंड इफेक्ट है, इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट,
एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे बताइए। सर आपने इसमें जो ये लाइन लिखी है कि द सेंट्रल लाइन कांट मूव इंडिपेंडेंटली बट इट मूव अगेंस्ट द नेट ड्रैगिंग फोर्स ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर, इसका हम्म। क्या मतलब हुआ, बता दीजिए प्लीज। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास देखो ये है इसकी सराउंडिंग, आप दिख रहे हो ये वाला जो मैं कर्सर, ये है आपकी पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके नेगेटिव चार्जेस हैं, इसकी सराउंड है, ठीक है ना। ठीक है जब सर। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो वो नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन था ना, एक सम अट्रैक्शन था, तभी तो एटमॉस्फेयर बना पा रहा है। ये आयोनिक एटमॉस्फेयर कैसे सिस्टमेटिकली अरेंज हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस है, ठीक है, तभी तो एटमॉस्फेयर है, नहीं तो हाँ एटमॉस्फेयर से नीचे आ जाता है ना। हाँ जी। आपस की जो है सम रिलेशन है इसके अंदर, क्योंकि डिवाकर थ्योरी में आप आगे जब हम स्टडी करेंगे, आपको जो है मैंने आपको बताया था ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट इसकी रिलेशन को निकालते हैं, वो आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट की फॉर्म में उसको मेजर कर सकते हैं, इसकी फोर्स को। तो कहीं ना कहीं ये दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमेट्रिकली बैलेंस है, तभी ये एटमॉस्फेयर बना पा रहा है। जब विदाउट एनी फिल था तो ये एक सिमेट्रिक और यूनिफॉर्मली अरेंज था। जब आपने फिल अप्लाई कर दिया, जब फिल अप्लाई करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव आपने अप्लाई कर दिया, तो आयोनिक एटमॉस्फेयर जैसे इस केस में नेगेटिव है, तो आयोनिक एटमॉस्फेयर जो है वो पॉजिटिव तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों का अट्रैक्शन है। और जो पॉजिटिव्स है सेंट्रल आयन वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो जब हम इस आयन पॉजिटिव आयन का देख रहे हैं, इसकी आयन की मोबिलिटी, इसकी आयन की मोबिलिटी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो सेंट्रल आयन पॉजिटिव चार्ज है वो तो इस आयोनिक एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट जा रहा है ना। आप यहाँ पे देखिए इसकी मूवमेंट को देखिए, ये मूवमेंट ऑपोजिट में जा रहा है, हाँ जा जी रहा है सर। कि नहीं जा रहा है। हाँ इसको हम जी। कहते हैं सेंट्रल आयन जो है कैन नॉट मूव इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उसकी एटमॉस्फेयर ऑलरेडी एसोसिएटेड है इसके अंदर, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता। बट ये जाएंगे राइट में, बट ये आपका आयोनिक एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट में जाएंगे, मतलब मूवमेंट के अगेंस्ट में, है ना। तो आयोनिक एटमॉस्फेयर खींच रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और वो सेंट्रल आयन जा रहा है राइट में जा रहा है, तो उसकी अगेंस्ट में जा रहा है। सो दैट्स व्हाई आई सेड इट कैन नॉट मूव इंडिपेंडेंटली बिकॉज इट हैज एटमॉस्फेयर, इट हैज एटमॉस्फेयर, ठीक है। वो एटमॉस्फेयर सिस्टमेटिकली नहीं रहा है, बट वो ऑपोजिट में जा रहा है, उसके अगेंस्ट में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यस सर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन की स्पीड कम होगा, क्योंकि हाँ जी। उसकी अगेंस्ट में आयोनिक एटमॉस्फेयर उसके अपोजिट में खींच रहा है। तो जब आप आयन कंसंट्रेटेड लेंगे, जब आयन आप कंसंट्रेटेड लेंगे तो क्या होगा, मोर आयन विल बी इंटरेक्शन। तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन में ये ड्रैगिंग फोर्स ज्यादा होगा कि नहीं होगा। कंसंट्रेशन हाई होगा तो आयन आयनिक इंटरेक्शन बढ़ेगा, आयन आयनिक इंटरेक्शन बढ़ेगा, आयन आयन इंटरेक्शन बढ़ेंगे तो इसकी जो मोबिलिटी है और कम होते जाएंगे। हाँ जी सर। जब डाइल्यूशन होंगे, तो ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर है और आयन सेंट्रल आयन के बीच का रिलेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो धीरे 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 फोर्स इंक्रीज उसके होगी। एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएंगे। जब एटमॉस्फेयर खत्म होगा तो आपका आयन सेंट्रल आयन जो है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आयनिक एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, तो आप फ्रीली मूव करेंगे। जब फ्रीली मूव करेगा तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ठीक है सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हाँ जी सर, थैंक यू सर। ओके, सो ये एसिमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट जो है ये सॉल्वेंट रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली द कॉन्सेप्ट जो है सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बट दे आर एक्सप्लेनिंग इन डिफरेंट वे। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स के थ्रू एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में सॉल्वेशन के थ्रू इफेक्ट होता है। लाइक आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, आयंस जो है इन सॉल्यूशन, in solution, iron in solution are generally solvated होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, they are solvated,
ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब सॉल्वेशन होंगे, सो एंड when they move they carry with them the associated solvent molecules. ठीक है, so central ion and ionic atmosphere are also solvated, ठीक है, right? And on applying electric field, they move in opposite direction. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Right? So what I am talking about is, मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, तो इसको सॉल्वेंट, जैसे वाटर सॉल्वेंट है, तो वाटर डेल्टा नेगेटिव के थ्रू इसको सॉल्वेशन करेंगे। ये सॉल्वेशन की कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको थोड़ा सा पहले लिख देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। लेट मी राइट दिस, ठीक है। सिमिलरली ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को सराउंड करेंगे हाइड्रोजन के थ्रू, क्योंकि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव होगा, ऑपोजिट चार्ज ही तो करेंगे सॉल्वेशन के थ्रू। नेगेटिव है सेंट्रल आयन, तो आपका पॉजिटिव के थ्रू करेंगे। सॉरी, ठीक है। सो आपका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या है, ऑपोजिट चार्ज है और सेंट्रल आयन ऑपोजिट है। तो सपोज मान के चलो ये आयोनिक एटमॉस्फेयर है और ये मान के चलो सेंट्रल आयन है, ठीक है, एक सिंपल एक मान के चलो, ठीक है। अब दोनों एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर और सेंट्रल आयन दोनों अलग अलग आयन से सॉल्वेटेड है, अलग अलग आयन से सॉल्वेटेड है। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करेंगे, व्हाट विल हैपन, दे विल मूव ऑपोजिट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद देयर सॉल्वेशन, यू नो, द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सो दिस विल क्रिएट, क्या होगा, एक जो है सेंट्रल आयन के ऊपर क्या होगा, ऑपोजिट में, क्योंकि सेंट्रल आयन जो है वो क्या है, सेंट्रल आयन एटमॉस्फेयर से डिपेंडेंट है, ठीक है। So whenever you are talking about the applying the electric field, when these atmosphere and central ions are moved in the opposite direction, तो क्या होगा, ये भी आपका जो है वो क्या ड्रैगिंग फोर्स जो है वो क्रिएट करेंगे। सो दिस काउंटर करेंट
ऑपोजिट काउंटर करेंट मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का. काउंटर करेंट्स creates the viscous drag, मतलब ड्रैगिंग, ठीक है, ड्रैग्स and resist the movement of the ion through the solution, ठीक है. तो ऑब्वियसली अगेन इससे क्या होगा, इससे आपकी सेंट्रल आयन की मोबिलिटी को कम कराएंगे, ठीक है. सो मोर आयंस आर प्रेजेंट, मोर द सॉल्वेशन विल बी देयर, सो इट विल क्रिएट मोर ड्रैगिंग फोर्स. तो फोर्स जो है वो कम कराएगा. इसलिए आपकी जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या आ रहा है, देखो अभी मैं बात जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको रिलेट करना है. ये सर एक ये मिनट जो बेटा, सर एक मिनट बेटा, एक मिनट. लेट मी जस्ट कंप्लीट फ्यू थिंग्स. आप लोग समझ में जो है ना, बार बार आपको ये कॉन्सेप्ट को रिलेवेंस लाना है. ये जो कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर लिखे थे उसको बार बार को आपको लिंक करना है. जब तक ये लिंक नहीं कर पाएगा आपकी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा. देखो ये जो हमने स्ट्रॉन्ग, लेट मी कंप्लीट बेटा, उसके बाद आपकी जो क्वेरीज हैं मैं लूंगा इमीडिएटली, बट पहले लेट मी फिनिश इट. आपको इतना समझ में आना चाहिए, इसीलिए लेट मी ऑल्सो राइट दिस. देखो जब भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कहीं ना कहीं ये ग्राफ आपके सामने आना चाहिए. मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात किया तो इसी पार्टिकुलर स्पेसिस के बारे में बात कर रहा हूं. कोई पोटेशियम क्लोराइड हो या ये जो ट्रेन है इसी के बारे में बात कर रहा हूं. नाउ कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो ये मोलर कंडक्टेंस कम क्यों हो रहा है? मोलर कंडक्टेंस कम हो रहा है क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट के अंदर सॉल्वेंट जो है एटमॉस्फेरिक में भी सॉल्वेटेड है, सेंट्रल आयन में भी सॉल्वेटेड है. तो जब दोनों अपोजिट चार्ज की हैं तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे. जब अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा तो सेंट्रल आयन जो है उसकी अगेंस्ट एटमॉस्फेयर मूव कर रहा है, तो ये ड्रैग करेगा उसका मूवमेंट को. इसलिए जब भी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो उसको ज्यादा वो ड्रैग करेंगे तो आपका कंडक्टेंस कम होता जाएगा. जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो आपका ये कम हो रहा है, देखो ये कम हो रहा है, ठीक है. तो इसीलिए आपका कम हो रहा है बिकॉज दे आर क्रिएटिंग अ विस्कस ड्रैग एंड रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ आयन थ्रू द सॉल्यूशन. ये मैं कह रहा हूं. बट ऑन डाइल्यूशन क्या होगा? ऑन डाइल्यूशन जब हमने कंसंट्रेशन को कम किया, डाइल्यूशन का मतलब ऑन डाइल्यूशन द डिस्टेंस बिटवीन आयंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन आयन इंक्रीजेस और इंक्रीज, ठीक है. एंड ग्रेजुअली क्या होगा? द आयनिक एटमॉस्फेयर जो था, क्योंकि जब आपका आयन की इंटरेक्शन जो है धीरे धीरे कम होते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो आयनिक एटमॉस्फेयर एक स्टेज आएगा तो आयनिक एटमॉस्फेयर बेनिश हो जाएंगे, ठीक है. आयनिक बेनिश हो जाएंगे, जो ड्रैगिंग फोर्स खत्म हो जाएंगे. सो एज अ रिजल्ट the ions move more freely and therefore the molar conductance increases. अब यही एक्सप्लेनेशंस मैं आपको दे रहा हूं. आप नाउ आपको कोई क्वेरीज हैं तो बताइए इमीडिएटली, ठीक है. सर एटमॉस्फेयर के बाद क्या सर लिखा एक बार इसमें ड्रैगिंग फोर्स बताना इलेक्ट्रोफेरिक वाले में. इलेक्ट्रोफोरेटिक वाले में. यस सर, ड्रैगिंग फोर्स बता दो एक बार इसमें. हाँ बेटा, ये जो
आपको ना एक और चीजें मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे सपोज एक आपके पास पॉजिटिव आयन है, इसके सराउंडिंग में ऐसे नेगेटिव पड़ा हुआ है, ठीक है। अब नेगेटिव जो है सॉल्वेटेड होगा, तो सपोज ये नेगेटिव है, तो ये आपका देखो आपको इस तरह का व्यू आपको अपने आप लाना पड़ेगा। मैंने आपको अलग अलग किया है, ये आपको ये व्यूज आपको अपने आप मतलब देखना है आपको ये देखना की जरूरत है। देखो ये एटमॉस्फेयर है, ये है आपका आयोनिक एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये आपका सेंट्रल आयन है, सेंट्रल आयन में भी सॉल्वेटेड है, आयोनिक एटमॉस्फेयर में सॉल्वेटेड है, मगर दोनों का देखो एक सॉल्वेशन है नेगेटिव से, एक सॉल्वेशन है पॉजिटिव से। तो आप इसमें दोनों अलग अलग पोल से, अलग अलग चार्ज से वो सॉल्वेटेड है। तो क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो ये इसकी तरफ जाएगा और ये इसकी तरफ जाएंगे। आर गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आप सिमेट्रिक इफेक्ट देखा है, उसी तरह आपकी एटमॉस्फेयर ऑपोजिट में है तो ये इधर जाएगा और सेंट्रल लाइन इधर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ड्रैगिंग, जो विस्कस ड्रैगिंग जो बोल रहे हैं, क्योंकि मोर कंसंट्रेटेड होंगे और रेजिस्ट मूवमेंट ऑफ आयन जो है, इसीलिए मैं रेजिस्ट बोल रहा हूं कि सेंट्रल आयन की मैं बात करूं कि ये आयन्स की मोबिलिटी क्या होगा। तो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर बैठा हुआ है, एटमॉस्फेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी सॉल्वेटेड है। तो आपको ऑपोजिट करेंगे तो विस्कस फोर्स की अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। विस्कस फोर्स क्रिएट होगा, मतलब ऑपोजिट। विस्कस ड्रैगिंग मतलब ड्रैग मतलब अगेंस्ट सेंट्रल आयन की, क्योंकि मेरे को तो ये फोकस है सेंट्रल आयन के ऊपर। सेंट्रल आयन में क्या क्या इफेक्ट्स है, सराउंडिंग Yes, इफेक्ट्स sir, है, yes. उस इफेक्ट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. सर वो जो विस्कोस फोर्स सर बता दीजिए, वो थोड़ा सर कंफ्यूजन हो रहा वो है कि कंफ्यूजन नहीं है। विस्कस फोर्स इज नथिंग बट, क्योंकि सॉल्वेशन है ना, सॉल्वेशन का मतलब क्या होगा कि मोर आयंस आर देयर, आयन सराउंड है, आयन सराउंड है, तो आयन जो है वो सराउंडेड है, जैसे सॉल्वेटेड है ना, तो मोर आयंस आर देयर, सो दैट इज एक्सप्लेन बाय द विस्कस ड्रैग, ठीक है। इट तो ओके? फिर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो भी तो आयन के मोमेंट में, मतलब वो तो ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा ना, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है सर। हाँ हाँ, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की ही बात कर रहा हूँ। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वही उसको लेके जाएगा ना, लेके ऑपोजिट में जाएगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही तो लेके जा रहा है ना ऑपोजिट में, जी ठीक है। तो वही वही कह रहा हूँ विस्कस फोर्स, ठीक है। जब मैं डाइल्यूट करूंगा, मैं जब डाइल्यूट करूंगा तो ये जो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन की डिस्टेंस बढ़ जाएगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के डिस्टेंस बढ़ जाएंगे, तो एटमॉस्फेयर जो है उसमें आप सॉल्वेटेड हो रहा है, वो अलग एटमॉस्फेयर में हो रहा है, सेंट्रल आयन में अलग हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मेन तो क्या था ना, मेन तो आयोनिक एटमॉस्फेयर जो है वो, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्ज की थे, तो जब भी एक सेंट्रल आयन के ऊपर एक एटमॉस्फेयर जो है कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो उसके ऊपर पहले हमने देखना है कि उसकी इफेक्ट्स क्या है जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो क्लियर? जी सर। तो फिर सर सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो किस तरफ होगा, जिसके तरफ आयन का मूवमेंट जैसा होगा सॉल्वेंट का देखो जो सॉल्वेंट की मूवमेंट जो है ना, सॉल्वेंट की मूवमेंट किस में डिपेंड करेंगे, सॉल्वेंट की मूवमेंट डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेयर एंड सेंट्रल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि देखो ये जो सेंटर है वो नेगेटिव पोल से है और आपका जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव पोल से है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डालेगा तो ये जो आपका सेंट्रल जो नेगेटिव है, नेगेटिव जब मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव को लेके जाएगा, लेके जाएगा नहीं जाएगा, मगर ये ऑपोजिट में जाएगा इस सेंटर की, सेंटर के ऑपोजिट में ही जाएगा ना। हाँ जी हाँ हाँ, so that's why solvent and ion interaction जो है इसके अंदर वो रहेगा ही रहेगा, बट एटमॉस्फेयर में भी रहेंगे। तो एटमॉस्फेयर वाला ही आपने देखना है कि दोनों ऑपोजिट में जा रहा है या सेम जा रहा है। सेम जा रहा है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
बट दोनों क्योंकि ऑपोजिट है इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो दोनों ऑपोजिट में जाएंगे, ठीक है। इसलिए दोनों ऑपोजिट में जब जाएंगे तब काउंटर करंट जनरेट होगा। काउंटर करंट क्या है? ड्रैगिंग फोर्स, जो बिहाइंड उसको पुल करने की कोशिश करेगा इसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है, राइट। हाँ जी। हाँ, नाउ अल्टीमेटली मैं इसकी डेरिवेशन जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। ये जो होल कॉन्सेप्ट मैंने जो थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया है, डिवाहिकल ऑन सागर, ठीक है, ऑल्सो डेवलप ए इक्वेशन। इन्होंने इक्वेशन डेवलप किया है, ये डायरेक्ट इक्वेशन याद करने की जरूरत है। इसने एक्सप्लेन किया है द मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a plus b into molar conductance in infinite dilution and multiplied by root over concentration for strong electrolyte। ये सिर्फ strong electrolyte के लिए है, weak के लिए तो we have already talk about। तो ये strong electrolyte की ये theories develop किया है where A and B are the constant factor, ठीक है, and as C increase, C means concentration increases, the molar conductance इस रिलेशन में देखो molar conductance decreases, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन किया है। and when the C approach to zero, जब C approach to zero होगा तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तभी हमने ये जो इक्वेशन में देखो यहाँ जब C 0 में जाएंगे तो आपका मोलर कंडक्टेंस जो है मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। तो कल मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया था कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम मेजर कर सकते हैं फ्रॉम दी इक्वेशन, ठीक है। तो ये रिलेशंस यहाँ से आ रहा है। तो ये ग्राफ जो है, ये जो आपका वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन जो है वो डिवाहिकल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? आप लोग क्लियर है कि नहीं है? यस, ओके, राइट। So should I go ahead? Okay. Now let me go ahead. Now अब जो बात आता है बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हमारा जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। मोलर डिवाहिकल और सागर थ्योरी के कॉन्सेप्ट यूज करो, डायग्राम यूज करो। तो नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, डिराइव नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अलग थ्योरी प्रोड्यूस हुआ है, उसका नाम है कोरास लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोरास लो में 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कोरास लो, ठीक है। सो कोरास लो जो है ही वाज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, कि मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में कैलकुलेशंस करके उसने इवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के भी डिफाइन किया है और इवन वीक इलेक्ट्रोलाइट के भी डिफाइन किया है। तो सबसे पहले जो कोरास जो है जो उसने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है उसके बारे में लेट मी टॉक अबाउट। यस, इज देयर एनी क्वेश्चंस बिकॉज समबडी हैव राइट, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, इम्पोर्टेंस बता दीजिए, क्या इम्पोर्टेंस क्या है पूजा जी? एक इम्पोर्टेंस है, कोरास थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होंगे अभी। सो कोरास वाज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, टू पॉइंट आउट
point out that when molar conductance is plotted with or against root over c, ठीक है, for univalent strong electrolyte ठीक है, it gives the linear relations, ठीक है, रिलेशनशिप का मतलब वही ग्राफ वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, रूट ओवर सी, ये जो है स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये खोरास ने सबसे पहले इसको डिफाइन किया है, लाइक पोटासियम क्लोराइड जैसा यूनिवैलेंट, ठीक है। उसने डिराइव किया है दी मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस m। इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप आपके असाइनमेंट में देखिएगा, इसमें क्वेश्चन आया होगा। नाउ दिस इज द इक्वेशन, वेरी सिंपल क्वेश्चन डिराइव बाय द खोरास। तो ओनसागर से लिटिल डिफरेंट है, ओनसागर में भी वही बात है, बट यहाँ पे थोड़ा सा खोरास ने अलग वे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो खोरास से when C becomes 0, concentration becomes 0, so your molar conductance become ये सेम कॉन्सेप्ट जो है उसने सिंपल वे से डिफाइन किया है, where B is nothing but, क्योंकि A plus B था उस वाले में, but B is nothing but Coras constant, ठीक है। Now this particular equation is valid only for univalent electrolyte, ठीक है, लाइक पोटासियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एक्सेट्रा, लाइक पोटासियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, यूनिवैलेंस, ठीक है, इसी के लिए वैलिड है। दूसरा उसने ये भी कहा है कि खोरास कांस्टेंट बी, जो कोरास कांस्टेंट, ठीक है, कोरास कांस्टेंट बी mainly depends on stoichiometric value of an electrolyte on electrolyte for univalent, for all univalent electrolyte, it is constant, ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है, बट on changing the stoichiometry,
it change. ठीक है, it change. सो ये मेनली किस में डिपेंड करता है, स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू में डिपेंड करता है, कितनी आपकी एक्स वाई जेड है आयन के साथ में. ठीक है, सो ये भी आपकी उसमें क्वेश्चन में है, तो मैंने आपको यहाँ आंसर लिख दिया है. व्हेन एवर यू गो थ्रू द क्वेश्चंस यू विल फाइंड दैट इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, सो समबडी हैव राइट, स्क्रॉल डाउन अप एंड. ठीक है, आप लोगों को कुछ लिखना है तो स्क्रॉल डाउन में कर देता हूँ. इज इट फाइन? Is it okay? Those who could not write? Yes, Pooja, हाँ, okay. Pankaj Kumar भी लिखा है. Please scroll down. How much I have to scroll down, Pankaj? Is it fine? Okay, okay. आप लिख लीजिए. Let me then tell you. Right. So is it okay? Yeah. ओके, हो गया. ओके, थैंक यू. लेट मी गो अहेड. सो एक तो सबसे बड़ा जो कोरास का पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी उसने लिखा है. और दूसरा कोरास ने दूसरा जो मेथड है उसको भी उसने प्रपोज किया है वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में. सो कोरास आल्सो टॉक्स अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये कि स्ट्रॉन्ग के बारे में भी उसने कहा और वीक के बारे में भी उसने कहा. ठीक है, सो कोरास लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है. इंडिपेंडेंट, कोरास लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा. ठीक है, उसमें क्या लिखा है मैं स्टेटमेंट और उसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता देता हूं. नाउ इसने क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम. ठीक है, वो कहता है मान लो कंप्लीट आयनाइजेशन हो सकता है और आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर सकते हैं इन द इनफाइनाइट डाइल्यूशन. जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो, ठीक है, मतलब बहुत डाइल्यूटेड करेंगे तो, जैसे हमने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया जब आप इंडिपेंडेंट माइग्रेशन करेंगे डाइल्यूशन में, तो वही चीज उसने इक्वेशन फॉर्म में बताया है. ठीक है, तो इसको मैं दो वे में उसको लिख देता हूं, इस जो कॉन्सेप्ट है. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the at infinite dilution where dissociation of all the electrolytes is complete and where all inter-ionic effects disappears, right? Disappears, then each ion
each ion migrates independently of its co-ion and contribute to the total molar conductance of an electrolyte a fixed part which depends on only its own nature and not at all on the ion with which it is associated. ठीक है? This is what the जो statement है law of the independent migration of the ion, ठीक है? यही basic इसके law है. I hope you all understand. Interionic effects, okay? Interionic effects दोनों साथ में होगा. Interionic effects दोनों साथ में होगा, ठीक है? अलग अलग नहीं, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दी मोलर कंडक्टेंस, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution of an electrolyte must be equal to the sum of molar conductance of the ions composing it. ठीक है? जो भी इलेक्ट्रोलाइट जो भी जिस आयन से बना है उसका इंडिविजुअली पॉजिटिव में कितना है, नेगेटिव में कितना है, दोनों को सम करके उसकी टोटल निकाल सकता है. यही कॉन्सेप्ट है. जैसे फॉर एग्जांपल एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? एन इलेक्ट्रोलाइट, सपोज मेरे पास AXBY है सपोज, ठीक है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. सो मैं इसका जो है मोलर कंडक्टेंस निकालूं तो इसका क्या होगा? XAY पॉजिटिव प्लस YB नेगेटिव, X नेगेटिव, यही होगा. सो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर A एंड B, फॉर AXBY का हम निकालेंगे तो इसका सम होगा मीन्स X का A का कितने कंट्रीब्यूशन है, A का कितनी कंट्रीब्यूशन है, प्लस YB का कितनी कंट्रीब्यूशन है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
इसका मीनिंग ये है, are you getting my point? This is what you know, this idea about molar conductance they are talking about. ठीक है, are you getting my point? Logically this is the meaning of this particular you know system. Is it fine? जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मेरे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है. Now I have aluminum sulfate. एल्यूमिनियम सल्फेट आयोनाइज हुआ है टू ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम आयन ट्राइस ऑफ सल्फेट आयन. ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एल्यूमिनियम सल्फेट का मैं निकालूं, ठीक है, तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम का कंट्रीब्यूशन और ट्राइस ऑफ सल्फेट का कंट्रीब्यूशन. ओके, ये होगा. ठीक है, इज इट ओके? समटाइम्स representations are different. Representation in the sense ionic conductance, इसको कहते हैं ionic conductance. This is known as a ionic conductance. ठीक है, ये मोलर कंडक्टेंस जो आप लिख सकते हो. समटाइम पीपल डू राइट. मैं एक और एग्जाम में आपको ऐसा भी आ सकता है, तो कंफ्यूज ना रहें, ये सिर्फ नोटेशन के ऊपर है. पीपल ऑल्सो राइट समथिंग लाइक दिस लिम्डा एम, ऐसा भी लिखता है. ये सिर्फ नोटेशन के ऊपर है. आयोनिक कंडक्टेंस को कहते हैं, समटाइम रिप्रेजेंट बाय दिस. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. मैंने ये आयंस लिया है और कुछ किताब में ऐसा भी लिखा जाता है. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको. जो भी वैल्यूज हैं, बिकॉज दे रिप्रेजेंट आयोनिक कंडक्टेंस, तो सम करके मिलेंगे. दिस वाज द सेम थिंग व्हिच वी कैन डिस्कस, राइट? इज इट ओके? Yes? Now, can you understand? Yes, okay. Now, let me talk about how we can use this. How we can use this. Now, let me talk about a few questions here. Question number 2 for today. Now, suppose मेरे पास determine the molar conductance of acetic acid. When molar conductance for sodium chloride is X1 and for hydrochloric acid is X2. ठीक है, and for acetic sodium acetate C, ये C है, sodium acetate is X3. ठीक है, हमने एसिटिक एसिड का निकालना है. हाउ डू आई प्रोसीड कंसेप्चुअली? ठीक है, तो हमको पहले ये डेवलप करना है कि ये जो गिवन कॉन्सेप्ट जो है इससे हम कैसे ला सकता है. तो पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा. सपोज सोडियम एसिटेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड मिलेंगे एंड सोडियम क्लोराइड मिलेगा. आप एसिटिक एसिड को निकालने के लिए क्या है, देखो एसिटिक एसिड को निकालने के लिए इसको माइनस में लाना पड़ेगा. सो आपको मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, इसको सिमिलरली इसको मैं एक अलग तरीके से लिखता हूं. नाउ यू राइट इन द फॉर्म ऑफ मोलर एसिटिक एसिड. मोलर एसिटिक एसिड की फॉर्म में सोडियम एसिटेट प्लस मोलर acetic acid at infinite dilutions, hydrochloric acid.
which is equals to molar एसिटिक। देखो आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा इसका सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। सो नाउ निकाला मैंने ये है, तो सिंपल तरीके से मैं इसको निकाल सकता हूं। C is equals to मोलर कंडक्टेंस। ये बेसिकली यही एप्लीकेशन है कोरास थ्योरम का, प्लस माइनस एडिशन वगैरह कर सकते हैं, माइनस, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ हमने वैल्यू जो है, जो भी एक्स वैल्यू है, वाई वैल्यू है, एग्जाम में तो वैल्यू देंगे, बट यहाँ पे एक्स वाई की रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। तो सोडियम एसिटेट का X3 है, एसिटिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का X2 है, माइनस X1 है, ठीक है। सो मेरा ये फॉर्मूला के थ्रू मेरा ये रिजल्ट आ गया। इज इट ओके? नाउ इज इट क्लियर? Is there any problems? Yes, okay, clear. So let me talk about one question from NET 2011. NET 2011, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक बार आप खोज लेना, ये मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख दिया हूँ, आपकी जो नोट में लिखे होंगे उससे थोड़ा सा अलग होगा, बट वैल्यू सेम है। मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution for sodium sulfate K2SO4। आपकी उसमें भी होंगे, आप लोग अपनी नोट में लिखे होंगे, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, नहीं लिखना चाहे उसी असाइनमेंट बुक से आप देख सकते हो। Yes, somebody have raised the hand, कौन है? कोई इमरजेंसी है तो पूछ लो भाई। If somebody have raised the hand, you can, if you have very emergency to ask the questions, you can ask me. Otherwise, just wait for 2 minutes more. Okay. R 260 308 150 426 and 105 Siemens centimeter inverse per mole square, शायद per mole square लिखे हैं respectively, ठीक है। Calculate the molar conductance for formic acid in the same unit and at same temperature, ठीक है। अब ना वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, हमने जो अभी फॉर्मूलास निकाले हैं। सो सबसे पहले आपको डेवलप करना पड़ेगा कि किस रिएक्शन के थ्रू आपका आ सकता है। फॉर्मेट सोडियम फॉर्मेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो दोनों मिक्स करके मिल सकता है फॉर्मिक एसिड। यस बेटा, somebody is writing lot of, we will try, give me sir, give us 1 minute, okay? Yes, you do, okay, please try it। आप मेरा बिना देख के ट्राई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना। ये सिंपल है, वो जो फॉर्मूलाज लगानी है, बाकी आप रिजल्ट मेरे को बता देना, और दूसरे लोग जो प्रेजेंट हैं उसके लिए भी मैं देखता हूँ। आप लोग की आंसर, मेरी आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है,
You can check it. एक क्वेश्चंस ज्यादातर आएगा इसमें, इस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं। मैं तो एक कराया हूं, बाकी बहुत है क्वेश्चंस। नाउ ये जो फॉर्मिक एसिड का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें फॉर्मिक एसिड निकालने के लिए मेरे पास सोडियम क्लोराइड चाहिए, क्योंकि सोडियम क्लोराइड की वैल्यू माइनस करनी है मैंने। अब सोडियम क्लोराइड की शायद वैल्यू नहीं दे रखे होंगे, नहीं दे रखे हैं, ठीक है। सो ये एक और ट्रिक है, ये एक और ट्रिक है जो आपको निकालनी है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चंस, एक और इसमें कैलकुलेशन में आपकी रिएक्शन लगेंगे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो दे नहीं रखा है। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है, बट इसके नहीं दे रखा है। सो आपको दूसरे इक्वेशन से निकालनी है। वो इक्वेशंस हैं सोडियम सल्फेट, क्योंकि सोडियम सल्फेट दे रखा है, सोडियम सल्फेट एंड पोटासियम क्लोराइड का भी दे रखा है। सो इसको रिएक्शन करके हम पोटासियम सल्फेट बना सकते हो, क्योंकि पोटासियम सल्फेट का भी दे रखा है। सो ट्वाइस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो हमने दूसरा रिएक्शन फिर यूज किया। नाउ इसमें से भी हम सोडियम क्लोराइड का कैसे निकाल सकते हैं? ट्वाइस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ट्वाइस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल्स टू the molar conductance of sodium sulfate plus twice of the molar conductance of potassium chloride, ठीक है। अब यहाँ आपका कॉन्सेप्ट जो है, इसमें से आपकी वैल्यूज सारे आपकी दिए हुए हैं। सो हमारा सोडियम का कितना आ रहा है? सोडियम का सोडियम क्लोराइड का वैल्यू जो है वो आ रहा है 252/2, that is 126 Siemann centimeter inverse meter square, sorry mole square, ठीक है। अब now you can easily use these values. Formic acid is equals to इसका वैल्यू डायरेक्ट यूज करता हूँ, 105 प्लस 426 माइनस 126, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज 406 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल इनवर्स इनवर्स स्क्वायर, ओके। इज इट फाइन? दोज हु हैव कैलकुलेटेड कैन डू। सर सोडियम सल्फेट का नहीं लेना, क्यों? हाँ, सोडियम सल्फेट का 405 लिया तो है। हेलो सर, ये थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए ऊपर से। अच्छा, स्क्रॉल, यस, इज इट फाइन? एक बार वैल्यू चेक कर लेना। हाँ, 426 तो लिख तो रखा है मैंने। पोटासियम, पोटेशियम सल्फेट नहीं लेना। क्यों? पोटासियम सल्फेट तो लिया ही हुआ है, ऊपर माइनस किया था ना हमने। पोटासियम सल्फेट का वैल्यू क्यों नहीं लेगा? ये देखो सर, जो बी वाला इक्वेशन है उसकी बात कर रहे हैं। माइनस माइनस माइनस, ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपने जो लिखा है शायद मेरे से ये रह गया है, ठीक है। इसको मैं आपको लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने बता दिया है तो बहुत अच्छा किया। ये है 260 प्लस 300, क्योंकि 2 इंटू 150 की बात है, माइनस 308, ठीक है। मैं यूनिट को हटा रहा हूँ, यूनिट को आप लिख लेना। तो इसका आएगा 560 माइनस 308 अपॉन 308 है ना। तो इसकी वैल्यूज आएंगे 252, ठीक है। 252 कितना है? सीमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल पर 2, ठीक है। तो इसी को मैंने डिवाइडेड बाय 2 किया है। इज इट क्लियर? ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने करेक्शन बताया, वो मैंने कर दिया है। इज इट फाइन?
आंसर 405 आएंगे। हाँ 405 405 आएंगे, बिल्कुल सही बात है, 405 ही हैं, मैंने कहीं गलती से साइड में लिख दिया। ठीक है, क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2013 की नेट। ठीक है, इसमें आपकी इसमें लिखा होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड रुबिडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड एंड रुबिडियम आयोडाइड। ये भी आपकी शायद क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ा आसानी से मिलेगा, तो लेट मी जस्ट चेक इट। नेट 2013 में क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 30 मेरे पास ये इसके हैं। ठीक है, अब नाउ इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपका रुबिडियम क्लोराइड दे रखा है, आयोडाइड दे रखा है, सोडियम क्लोराइड दे रखा है। सो इसकी रिएक्शन देखो, सोडियम क्लोराइड प्लस रुबिडियम आयोडाइड रिएक्शन करेंगे तो सोडियम आयोडाइड बनेगा प्लस रुबिडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो आपको निकालना किसका है, निकालना है रुबिडियम क्लोराइड का। सो डायरेक्टली यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, रुबिडियम क्लोराइड का वैल्यू जो है इक्वल्स टू सोडियम क्लोराइड प्लस रुबिडियम आयोडाइड माइनस सोडियम आयोडाइड, है ना। नाउ इसकी वैल्यूज कितनी दे रखे हैं, आपका रुबिडियम सोडियम क्लोराइड का दे रखे हैं 112.7 प्लस 9.1 माइनस 10.8। ठीक है, इसका यूनिट है सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, सो देयरफॉर योर वैल्यू इज फाउंड टू बी 11। ठीक है, एम आई करेक्ट। हाँ, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। हैं 14 क्यों आ रहा है, मेरी वहाँ 11 आ रहा है, गलत तो नहीं है मेरा, हैं 11 आएगा। ठीक है, ओके राइट। तो इस तरह का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशंस हम बहुत ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, राइट। ओके, अब नाउ मेरे पास 13 मिनट है। शुड आई टेक द क्वेश्चंस और शुड आई प्रोसीड? हाँ बेटा, यूनिट जो है ना, यूनिट आपकी जस्ट मिनट, मेरी आपकी यहाँ दे रखा है, यूनिट जो दे रखा है वही होगा, आई डोंट नो, मैंने ले जस्ट चेक, आपने यूनिट के बारे में कहा तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ वही है, ठीक है, मिली सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। हाँ यूनिट जो दे रखा है, ठीक है, ये यूनिट जो है वो सेम है, ये जो दे रखा है ना इसकी यूनिट है ना मिनी सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, जो दे रखा है वही यूज किया आपने। ओके, should I take the questions? Okay, because I can talk about little more of the others. चलो मैं एक और क्विकली बताता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट आयोनिक मोबिलिटी के बारे में। इसमें भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और आएंगे। ठीक है, आयोनिक मोबिलिटी के बारे में लेट मी टॉक अबाउट नाउ। आयोनिक
mobility. ठीक है. Now when we talk about ionic mobility is very important to understand, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस आएंगे कि ट्रांसपोर्ट नंबर्स वगैरह की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा. तो let me just tell you. Just wait for 2 minutes. Let me just tell you what I can tell you. जो आपको very short period में कितनी लेवल तक आपको बताऊं. Let me just tell you. Yeah. Okay. So ionic mobility is defined as, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम. Ionic mobility is defined as ionic velocity. Ionic velocity per unit electric field. ठीक है. Now it has a constant value. इसका मतलब है कि u is represented by ionic mobility. This is nothing but ionic mobility. ठीक है. is equals to v means ionic velocity upon e है. जब E1 होंगे तब उसकी वेलोसिटी जो होगा वो आपका आयनिक मोबिलिटी कहते हैं. सो v is nothing but the velocity of ion, ठीक है, moving in an electric field E. ठीक है. एंड इसका जो यूनिट ऑफ u इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर बॉल. ठीक है, ये इसका यूनिट है. नाउ ये जो आयनिक मोबिलिटी है इससे हमारा देखो, ये जब पोटेंशियल 1 होगा तब का वेलोसिटी जो है उसको कहते हैं आयनिक मोबिलिटी. तो समटाइम पीपल आल्सो से दैट इट इज अ स्पीड ऑफ आयन व्हेन द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज 1 बॉल पर यूनिट. ठीक है, तो कल को ये डेफिनेशन देता है तब भी ये सही है. ये भी ऐसा डिफाइन होता है, द स्पीड ऑफ आयन व्हेन potential gradients is 1 ball per unit. 1 ball per unit. ठीक है, ये भी सेम डेफिनेशन है इसका. नाउ ये किसके साथ रिलेटेड है? ये आयोनिक मोबिलिटी के साथ रिलेटेड है. ठीक है, so ionic mobility is related to ionic conductance at infinite dilution. तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है. ionic mobility is related to ionic conductance, क्योंकि हमारे पास कंडक्टेंस की कॉन्सेप्ट यूज करना है. ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है, थ्रू द इक्वेशंस दैट u पॉजिटिव का वेलोसिटी है तो इसका आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ दैट आयन एंड z पॉजिटिव चार्ज इनटू फैराडेज. ठीक है, सिमिलरली आयोनिक कंडक्टेंस ionic mobility is equals to the ionic conductance upon charge into Faraday's. बड़ा important है. ठीक है, where I already have told you the lambda positive and lambda negative is or are ionic conductance of cation and anion. ठीक है,
और Z पॉजिटिव Z नेगेटिव क्या है, चार्जेस है, ठीक है, इज द चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है। फराडेस क्या है, फराडेस कांस्टेंट, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा रिलेशंस हैं, ये हम आपको आगे रिलेट करेंगे, कैलकुलेशन होगा टुमारो और मे बी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो नाउ फॉर टुडे लेट मी स्टॉप हियर। इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा यू के बारे में, कैसे कैलकुलेट होंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आएगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यस सर एक बार मोबिलिटी की यूनिट बताना। मोबिलिटी की सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर बॉल। सर स्क्वायर कैसे होगा, मीटर या फिर मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड होना चाहिए ना वेलोसिटी की यूनिट। किसकी? सर वेलोसिटी। हाँ नहीं, ये जो है, ये जो बेसिकली क्या है, दिस इज द यूनिट विच वी डिफाइन इन द फॉर्म ऑफ, मैं आपको बताता हूँ, u जो है u इक्वल्स टू कि मीटर पर सेकेंड अपॉन बॉल पर मीटर होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर बॉल, ठीक है। ओके ओके ये है क्लियर। यस सर। तो सेंटीमीटर में लिखना है तो लिख लो, या Yes, मीटर में yes. लिखना है तो ऐसे मीटर लिख लो, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंस जो है, मैं उसका भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पोटेंशियल ग्रेडियंस का मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंस यहाँ जो लिखे है ना, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंस इज द पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो मैं इसमें और लिख देता हूँ। नहीं, आपने अच्छा पूछा। देखो कभी कभार बच्चे, टीचर जो है ना, वो तो आपको समझाने की कहेंगे, बट आप और जानकारी लेना है तो मैं और बताऊंगा ना, तो बहुत अच्छी बात है, आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। U पॉजिटिव जो है, ये V पॉजिटिव अपॉन दी डेल्टा, इसको कहते हैं डेल्टा फाई अपॉन D है। नाउ वेयर दी डेल्टा फाई अपॉन डी जो है, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंस, पोटेंशियल ग्रेडियंस, ठीक है। ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंस है इक्वल टू ई है, ठीक है, ई है, इसलिए मैंने लिखा था U पॉजिटिव और U इज इक्वल्स टू B पॉजिटिव अपॉन ई लिखा था मैंने, या पॉजिटिव लिखो ना लिखो सेम है, पॉजिटिव मतलब कैटायन का, नेगेटिव मतलब एनायन का। अब नाउ यहां से आया है ये जो यूनिट जो है, सो U इज इक्वल्स टू V अपॉन फाई डेल्टा फाई अपॉन D है, तो ये हो गया मीटर सेकेंड इनवर्स V का V वोल्टेज हो गया अपॉन M हो गया। सो D जो है is nothing but the potential apply per unit distance, ठीक है। यस सर, थैंक यू। ओके, हाँ 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 सर हाँ, फाई क्या, यस बेटा पूछो। फाई क्या है इसमें? फाई मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, फाई इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंस का मतलब क्या है ये भी बता देता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन है तो, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताना, मैं तो कह रहा हूँ, कोई मान लो कभी कभार जो है ना, ये टर्म जो है बड़ा मतलब डिफिकल्ट तो नहीं होता है, समटाइम कंफ्यूजन होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंस का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल with respect to distance, ठीक है, with respect to distance, is it okay? तो चेंज इन पोटेंशियल है ये जो फाई जो है, डेल्टा फाई इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज Okay, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्लियर। yes sir. नाउ एनी अदर क्वेश्चंस दोज हु हैव? सर बताइए। सर एक बार डाइल्यूशन का इफेक्ट बता दो मोलर कंडक्टेंस इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में, यस सर। देखो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में सिर्फ दो चीजें आपको समझना है कि ये सराउंडिंग, मतलब आयोनिक एटमॉस्फेयर भी एक चार्ज है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस केस में मैंने नेगेटिव लिया है, ठीक है।
तो Yes. ये चार्ज के ऊपर भी सॉल्वेशन है और सेंट्रल आयन में भी सॉल्वेशन है, मगर दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं और ऑपोजिट चार्जेस से भी Yes, सॉल्वेटेड sir. है। Yes, जब sir. आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। Yes, तो sir. क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन मूव होगा तो उसके साथ साथ उसकी एटमॉस्फेयर भी जाएंगे, उसकी एटमॉस्फेयर भी जाएंगे और उसकी सॉल्वेशन की मॉलिक्यूल भी जाएगा। Yes, sir. तो जब दोनों अपोजिट में जाएंगे तो क्या होगा, वो सेंट्रल आयन की मोबिलिटी देखना है हमने। पॉजिटिव चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज में हमने देखना है, सपोज ये मैं राइट डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, तो इसकी मोबिलिटी को कौन, सॉल्वेंट जो है वो अपोजिट में जा रहा है तो इसको पुल करेगा। Yes, तो sir. पुल करेगा तो क्या होगा, इसकी जो मोबिलिटी है कम हो जाएगा। मोबिलिटी कम होने का मतलब क्या हुआ, मोलर कंडक्टेंस कम होना। Yes, sir. ठीक है, सर मतलब जो ड्रैगिंग फोर्स होगा वो सोलवेटेड आयन का होगा ना? सॉल्वेटेड आयन के ही होंगे और एटमॉस्फेयर Yes, का sir. भी होगा, Yes, sir. Yes, sir. मगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए देखो यहाँ पे, देखो ये ग्राफ देखो, जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे आप यहाँ पे सी रूट ओवर सी जो आपको बढ़ाएंगे इधर राइट की तरफ जाएगा, तो Yes, sir. मोलर कंडक्टेंस कम क्यों हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल आयन में मोर ड्रैगिंग होगा, Yes, sir. मतलब सोल्वेशन ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इंक्रीज करने बहुत ज्यादा होगी। Yes, sir. सॉल्वेशन ज्यादा ड्रैगिंग फोर्स होगी भी ज्यादा होगा। और ड्रैगिंग फोर्स भी ज्यादा होगा। Yes, ठीक sir. है, जब आप डाइल्यूट करेंगे Yes, तो sir. ये पॉजिटिव और नेगेटिव का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये जो ड्रैगिंग फोर्स है वो कम होता जाएगा, है ना। डाइल्यूट करेंगे Yes, तो sir. ये कम होता जाएगा, तो एक समय आएगा उसमें एटमॉस्फेयर ही खत्म हो जाएंगे। एटमॉस्फेयर ही Yes, खत्म हो sir. गया तो आयन जो है अपने आप फ्रीली मूव कर Freely. सकते हैं। Yes, sir. जब Yes, sir. फ्रीली मूव होगा फिर इनकी तो मोबिलिटी भी कम हो जाएगी सॉल्वेशन से। बेटा सॉल्वेशन से कम होगा। जैसे हमने हाइड्रेशन और सॉल्वेशन कॉन्सेप्ट में कहा है कि स्मॉलर आयन जो है सॉल्वेटेड होता है तो उसकी मोबिलिटी कम होता है, वो बात भी रहेगा, मगर हम तो मोलर ये तो कंडक्टेंस जैसे कॉन्सेप्ट। जैसे जब सॉल्वेटेड नहीं थे तब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, क्योंकि तब सिर्फ एटमॉस्फेरिक जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वही ड्रैगिंग फोर्स था। अब जैसे सॉल्वेटेड हो गए ये दोनों, तो दो तरह की ड्रैगिंग फोर्स हो गए। प्लस मैं ये पूछ रही हूँ कि इनकी मोबिलिटी है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की, उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा ज्यादा इसमें सॉल्वेशन बिल्कुल में। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। बट यहाँ हम सॉल्वेशन की कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरे तरीके से ले रहे हैं। हम सिंपल सॉल्वेशन की कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हैं। जैसे एक सिंपल सॉल्वेशन की कॉन्सेप्ट भी होता है, जब आपने इनऑर्गेनिक पढ़ा होगा तो आपका हाइड्रेशन होता है तो स्मॉलर आयन जो है मोर हाइड्रेटेड होता है तो उसकी मोबिलिटी कम होता है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपकी सॉल्वेशन कॉन्सेप्ट में सिर्फ पढ़ा है। उसमें तो इंटर आयोनिक एटमॉस्फेरिक जो है उसके बारे में पढ़ाया नहीं था आपको, समझ गए ना। उसमें तो सिर्फ केटायन की सॉल्वेशन को देखता है। बट जब फिजिकल में आते हैं तो हम ये बताते हैं कि भाई केटायन जो है वो अकेला नहीं होता है, उसकी अंदर एक सराउंडिंग होता है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो सिर्फ सॉल्वेशन ही काम नहीं करेगा, उसकी एटमॉस्फेयर काम करता है। ठीक है। तो ये एक और माइक्रो लेवल में इसकी स्टडीज होती हैं, क्योंकि इसके बारे में ना आपने पढ़ा होगा डिवाहेरिकल लिमिटिंग लॉ। डिवाहेरिकल लिमिटिंग लॉ के बारे में पूरा तो नहीं बताऊंगा बट कुछ चीज बताऊंगा। उसमें इवन ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव की रिलेशन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है वो भी कैलकुलेशन हो सकता है। मतलब इतनी माइक्रो लेवल तक स्टडी किया हुआ लोग ने। सपोज आपके पास एक नेगेटिव है यहाँ पे और उसकी सराउंडिंग पॉजिटिव है, सराउंडिंग पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज बैलेंस। तो ये दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, ये गामा पॉजिटिव नेगेटिव में वो निकाला हुआ है ना। इसलिए डिवाहेरिकल लिमिटिंग लॉ है, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ, क्वेश्चन आया हुआ है उसमें भी हम स्टडी करेंगे वेरी सून आफ्टर दिस। सो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उस लेवल की स्टडीज हमने किए हैं। हमने यहाँ किया है ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है इसकी इफेक्ट्स मोबिलिटी में क्या पड़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ने से या कंसंट्रेशन घटाने से, समझ गए ना। तो ये इसके बारे में अभी जो मैंने डिवाहेरिकल ऑनसागर थ्योरी जो है वो पार्टिकुलरली कि एटमॉस्फेयर से क्या इसकी कंट्रोल में मोबिलिटी में रहता है या नहीं रहता है, और उसकी कंसंट्रेशन कम
करने से या ज़्यादा करने से क्या इसकी मोबिलिटी में इफेक्ट पड़ता है, इससे आपकी मोलर कंडक्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में सागर ने बताया है। वही चीज़ मैंने इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट्स में समझाया है थ्रू सॉल्वेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है? हाँ, यस यस। somebody have raised their hand on, कौन है और कोई और है want to ask? हेलो सर। यस बोलो बच्चे बोलो। सर कॉन्जर्शियस लॉ वाली स्लाइड शो करना है एक बार। लास्ट वाला सर नहीं, लॉ वाली स्लाइड, यही कौन सा? वाली सर, अच्छा ये वाली आगे। कॉन्जर्शियस लॉ वाली स्लाइड। हाँ हाँ यस यस हाँ बताइए। इज इट फाइन? इसे ऊपर करूंगा आगे या यही? थोड़ा सा ऊपर करना सर। यस हाँ बताइए। सर बस देखना ही था, कुछ रह गया सर थोड़ा सा। ओके ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, और एनी क्वेश्चंस? स्क्रॉल डाउन और नीचे करूं? हाँ बताइए। हेलो सर। यस सर वो जो आपने डिबाय हकल ऑनस्कर थ्योरी कराया था ना, सर उसके पहले कितनी स्लाइड कराए थे आपने? सर मैं थोड़ा लेट हो गई थी ज्वाइन करने बात में। नहीं, मगर आप लोग को मैं शेयर करता हूँ, ये आप लोग की उसमें ग्रुप में भी भेजता हूँ। लेट मी टेल यू स्लाइड, मेरे ख्याल से 3 ऑनसागर थ्योरी के पहले एक ही स्लाइड है शायद, एक ही स्लाइड। सर दिखा दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यही है, ये ओके है। और इसके बाद ये कैलकुलेशन हो गया। नाउ उसके बाद डेविकल ऑनसागर आ गया। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, इज इट फाइन? सो शुड आई लीव? यस सर। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके।